Ma'am, you can start the class. Oh, okay, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. A very good evening, class. Good So evening, ma'am. today, we are starting our first class online, and we previously we have taken on the offline mode. So today, we'll be covering the rest of the topics that we are left with of the rural marketing. Do let me know if you're able to see the screen. Able to see? Yes, ma'am. Okay, beta. So today we'll be starting or we'll be start our class by the topic classification of rural marketing. First, you just need to tell that we have already discussed in the class that what do you understand by the rural market? What is rural marketing basically? ये स्टार्टिंग से नहीं होगा। हाँ जी मैम ये स्टार्टिंग से ना मिड से मतलब ऑनलाइन में तो स्टार्टिंग से होती है ना क्लास मतलब फर्स्ट चैप्टर से। बेटा ये फर्स्ट यूनिट ही है हमारी और मेरी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं तो कॉम्बिनेशन मोड में ही है तो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन क्लास ओनली ठीक है ओके मैम। Because limited number of class we'll be having. So already I have taken 2 offline classes on the Sundays. So I have covered half of the unit, or we can say that I just had discussed with them uh, the definition of the rural marketing, okay, characteristics and scope and importance. Only these मैम topics ये I have रिपीट कर covered. देते अगर आप स्टार्टिंग से मैम रूरल मार्केटिंग में फर्स्ट 50 यहाँ से यहाँ है। You guys need me to like repeat it again. Or to start यस मैम। from starting, right? Yes, Oh, ma'am. okay. Okay, no worries. So, but we have to be a little bit quick. So you guys need to be responding, okay? Interactive and whatever I ask, you have to participate. Because ओके I थैंक यू have मैम। heard from the classification. Okay, so let's start from the beginning itself. So rural marketing, you're aware that it's one of the subjects of the marketing that you will be having in specialization in your last semester of MBA. Okay. So, are you guys aware about the syllabus of rural marketing? Have you seen it before? Yes, ma'am. Okay, यस good मैम। enough. Good enough. So, in unit number 1, we'll be studying about the definition or the scope of the rural marketing, the concept, components, rural versus urban marketing, then rural marketing in India, basically the rural environment, and the factors contributing to growth of the rural market. So let's start with the thing of the discussion that what is rural? What is rural marketing? So what do you guys understand by the word rural first? क्या लगता है तुम्हें कि रूरल का मतलब क्या होता है हमेशा से पढ़ते आए हो ना Ma'am, limited infrastructure and low population areas outside towns low and cities. low population you have said Sorry. low population you have said Yes, ma'am. uh, okay what else Mostly agricultural based economies and with limited exactly infrastructure, which is outside the towns and cities, yes with a slow lifestyle and small mm-hmm. communities. Yeah, everything is correct, Dhwani. But the thing is, majority of population of India lies in villages.
है ना, in the rural areas basically. So everything what you have said is absolutely correct, instead only except the thing that population is low, population that you said, the less population, right? So हमारी जो majority of population है इंडिया की बेटा, around 60% people lives in villages, are from rural areas. And rural marketing का मतलब यही होता है कि how you will be make those people aware about their needs, about their purchases, and how you will make the products available for them. ठीक है। अब होता है ना कई बार आपको गांव में से तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, गांव वाले लोग शहर वाले लोगों पर डिपेंडेंट है, राइट। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शहर में चीजें बनती है ना, कंस्ट्रक्शन शहर में होती है, आपके मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज आपके सेटअप यहीं पर होती हैं, है ना। आपके ट्रांसपोर्टेशन इजीली यहाँ से हो जाती है, लॉजिस्टिक्स यहाँ पे आपकी इजीली होती है, सप्लाई आपकी यहाँ पे इजीली हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, है ना। रिटेलर्स आपके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस ओवर हियर। बट क्या सेम चीज है, सेम सिनेरियो क्या आपका रूरल एरिया में लाई करता है? No, ma'am. No, right? So basically, in this particular subject, we'll be studying कि वहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं, क्या वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अप्लाई करने वाले हैं, यूज करेंगे, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं। देन अर्बन मार्केट में शहर की और गांव की मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, और कैसे ही वो डील कर रहे होते हैं, है ना। सो rural marketing basically is a process of planning, pricing, promoting and distributing goods and services to the rural consumers. So rural consumers कौन है बेटा हमारे? Who are our rural consumers? People who can't afford, who are price sensitive and These are the characteristics that you are telling me. I'm asking who are the rural consumers only. We'll go deeper about what is the nature of them, or what are their characteristics, what are the elements. But first we need to understand what is the rural consumer. people who buy according to their income. Rural consumer basically are the people who resides in rural areas, है ना, जो गांव में रहते Yes, ma'am. हैं, बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं, और उन लोगों की भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ नीड होती हैं, डिजायर्स होती हैं, जिनको उन्हें भी फुलफिल करना होता है, राइट। सो दोज आर आर रूरल कंज्यूमर्स। तो रूरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से और जिसके थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वहां के लोगों को क्या चाहिए, कितने पैसे में चाहिए, कैसे चाहिए, और कैसे हम उन तक वो प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और उनसे हम कैसे अपने, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर कि जितने भी रूरल एरियाज होते हैं वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना, मेजर सोर्स ऑफ देयर Yes, ma'am. इनकम बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, राइट। majority of people are into this tertiary sector, है ना, सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा कि सारे के सारे इनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वहीं से आता है ना। एंड इट्स जस्ट अ गिव एंड टेक प्रोसेस बेसिकली, इट्स दैट्स व्हाई वी कॉल रूरल मार्केटिंग इज अ सर्कुलर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, है ना, सर्कुलर प्रोसेस है, बिकॉज आप उनसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लेते हो और आप उनको इंडस्ट्री या सर्विसेज की चीजें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. Okay, so rural marketing is a two-way process. Why? Because from rural area we get the agricultural products, and from the urban areas we send them or we provide them some industrial products or some products those help them to grow the food or the organic things, so that वो हमारे साथ बाद में फ्यूचर में डील कर पाए, है ना। जैसे आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, आपकी मशीनरी हो गई, तो आपको खेतों में काम करने के लिए ये चीजें चाहिए ना,
क्या आप बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना फर्टिलाइजर्स के, बिना ट्रैक्टर्स के, विदाउट इक्विपमेंट्स, क्या आप कोई भी खेती बाड़ी कर सकते हो, कोई चीजें उगा सकते हो? इज इट No, पॉसिबल? ma'am. नो, राइट? तो आपको एग्रीकल्चर करने के लिए या आपको चीजें उगाने के लिए ही, है ना, क्रॉपिंग करने के लिए आपको कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। वो आपको अर्बन एरिया से मिलते हैं, और जब अर्बन एरिया से चीजें लेके आप उसका बेस्ट यूज करते हो, आपको फिर एक फिनिश गुड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और समथिंग। तो फिर वो सारी चीजें आप डील करते हो विद द अर्बन पीपल। This is how you give and take the things, and this is why we call rural marketing as a two-way process. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. So, as according to CK Pradhan, the rural market represent a large untapped opportunity where companies can create value by offering affordable and appropriate products for rural consumers. So, basically, what he is saying, एक लार्ज अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है जहां पे लोगों को भी नहीं पता। फॉर लेट्स से आजकल हमारा एआई बहुत ट्रेंड में है ना, जनरेटिव एआई। क्या आपको लगता है दूर दराज गाँव में, या गाँव में भी स्कूल्स होते हैं ना, कॉलेजेस होते हैं बैकवर्ड एरियाज में भी, तो क्या आपको लगता है अभी वहां किसी ने जाके उनको एआई के बारे में बताया होगा, या वहां पे लोगों को लोग इतने फेमिलियर होंगे या इतने हैंड्स ऑन होंगे जनरेटिव एआई पे? No, ma'am. नो, राइट? सो अगर आप ये चीजें सीख गए हो, है ना, एंड यू आर मास्टर ऑफ एआई, सो आप वहां जाके उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, तो उनके साथ जाके बात कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट द थिंग्स, कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, और मैं ऐसे आपके कॉलेज में आके पढ़ा सकते हैं और पढ़ा सकता हूँ। सो उससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे, है ना? सो वो रेडी हो जाते हैं। सो व्हाट इट इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, जहां Yes, अभी ma'am. तक लोग पहुंचे ही नहीं है, वहां आप पहुंच के उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी हुई ना। सो रूरल सेक्टर में जब हम काम करते हैं, या जब हम रूरल मार्केटिंग के अंडर हम ये जानते हैं कि जो लार्ज पॉपुलेशन हमारी, या मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू रूरल एरियाज और सम विलेजेस, वहां पे बहुत सारे लोगों के लिए काम करने का, बिजनेस का बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उन तक नहीं पहुंचे हैं, है ना? दे आर नॉट दैट मच एडवांस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स बिजनेस, टुवर्ड्स जॉब, टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स स्किल्स, राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जहाँ पे वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ बड़े होके ये चीजें कर लेंगे, ऐसा कमा लेंगे, वैसे कर लेंगे, बट दे डोंट इन्वेस्ट मोर ऑन देमसेल्व्स इन लर्निंग थिंग्स, आर दे? No, ma'am. नो, राइट? सो इफ एनीबडी इज नॉट गोइंग देयर, और बहुत ही कम लोग अगर उन तक पहुंच पा रहे हैं, तो जो पहुंच पा रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है उनके करियर ग्रोथ के लिए, कि वो उन लोगों को जो अनटैप्ड एरियाज हमारे हैं अभी, जहाँ पे लोग पहुंचे ही नहीं, हम वहां पहुंच के उसका बेस्ट कर सकें और उसमें से बेस्ट निकाल सकें, है ना? हाउ? सो बाय प्रोवाइडिंग देम द वैल्यू। और वो वैल्यू आप कैसे प्रोवाइड करोगे उनको? वेल, आर यू guys able to understand the value meaning over here? What does value mean? बोलो। And something what with what they need. Basically create value by offering affordable, मतलब providing them the satisfaction, Yes, ma'am. right? Providing them the satisfaction by offering what they actually require, जो उनके लिए जिस चीज की उनको नीड थी, in affordable prices only, because we are aware कि जो रूरल पीपल होते हैं उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, अगर होता भी है तो वो बाकी चीजों पे इन्वेस्ट ना करके या एक्सपेंड ना करके वो गोल्ड या सिल्वर, इन लैंड, है ना, इन चीजों, एसेट्स पे ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, कि उनको ये चीजें पता हो कि
उनको म्यूचुअल फंड्स में कितना करना है, शेयर्स में कितना करना है, ये वाले प्लान लेना है, या फिर उनको सेविंग अकाउंट्स करने हैं. दे आर वेरी सॉर्टेड इन देयर माइंड्स कि उनको सिर्फ इतना करना है, इतना कमाना है और ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ जगहों पे लगाना है. Right? So being a marketer, first and foremost, the thing that you need to do is first need to identify what they actually need and provide them in the affordable prices only. Otherwise, they're not going to buy from you. Then your opportunity will not be an opportunity anymore. ओके कि आपने सोचा कि अब तो तुम्हारी मोनोपोली हो गई है, तो मोनोपोली होने के हो गई है, तो दैट्स व्हाई यू कैन सेल एट एनी प्राइस. Right? You can sell at any price in the monopoly market in the urban area only. But rural areas mein, they people are more price sensitive, so you can't deal with them with the higher prices. Am I clear to everybody? Yes, ma'am. Is there any doubt? किसी का डाउट है बेटा कि रूरल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? No, ma'am. Okay. Now, these are the some characteristics of rural marketing. First is large and dispersed market. So, as we are aware, rural marketing is कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वो स्प्रेडेड है ना, स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है. मतलब कोई किसी और गांव में रह रहा है, कोई किसी गांव में, कोई हरियाणा के गांव में है, कोई यूपी के गांव में है, कोई बिहार के गांव में है, कोई राजस्थान के गांव में है ना. कोई एक ही जगह तो नहीं. रूरल एरिया इज नॉट लोकेटेड सम पर्टिकुलर प्लेस इन इंडिया. No, ma'am. है ना, सब जगह अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग गांव बसे हुए हैं, है ना. तो दैट्स व्हाई वी कॉल कि जो रूरल मार्केटिंग होती है, हमारे रूरल मार्केट्स जो भी होते हैं या रूरल एरियाज जो भी हैं, वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, पॉपुलेटेड हैं और डिस्पर्स्ड हैं, स्कैटर्ड है ना. देन एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम, वो वहां पे मेजोरिटी ऑफ पीपल लाई ऑन द एग्रीकल्चर, है ना. फार्मर्स ही होते हैं बेसिकली, और उन्हीं के थ्रू उनके पास पैसा आता है. उनका सोर्स ऑफ इनकम ही एग्रीकल्चर होता है. जैसे आप लोग देखते हो सीजनल फ्रूट्स उगाते हैं, है ना, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फिर मंडीज में जाके उनको सेल आउट करते हैं, एंड देन दे गेट द अमाउंट. राइट? So that is why we say rural marketing is a agriculture based income. Then seasonal demand. What do you mean by seasonal demand? उनकी डिमांड सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं मैम. जैसे कि लाइक कि जैसे जो भी फर्टिलाइजर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो जिस फ्रूट में या जिस क्या कहते हैं क्रॉप में डालने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको चूज़ करते हैं. तो और जो इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ होने हैं या उनकी जो लेबर यूज़ होनी है, वो भी उस सीज़न के अकॉर्डिंग या क्रॉप के अकॉर्डिंग ही करते हैं. इसलिए सीजनल डिमांड्स होंगी. एग्जैक्टली एब्सोल्युटली सही थिंग कि उनकी जो डिमांड होती है बेटा, वो हमेशा नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है. ड्यूरिंग सीजन, ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, जब वो काम कर रहे होते हैं, जब उनका खेती बाड़ी का टाइम होता है, फॉर दैट से जब वो राइस उगाते हैं, राइस कौन से सीजन में, रेनी सीजन में उगते हैं. तो अगर उसे रिलेटेड कोई इक्विपमेंट चाहिए होता तो उसी दौरान चाहिए होगा, वो समर्स में नहीं मांगेंगे. ठीक है. दैट इज व्हाई वी से दैट उनकी सीजनल डिमांड होती है. वो अगर उन्हें कोई भी चीज चाहिए या वो किसी भी चीज के लिए डिमांड रेस करते हैं, विलिंगनेस दिखाते हैं, शो करते हैं अपनी टुवर्ड्स एनीथिंग, तो वो ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर सीजन्स में होती है या किसी टाइम पे होती है, वो और फुल ईयर नहीं रहती है. नाउ लो लिटरेसी लेवल्स, अब हर कोई तो वहां पे पढ़ना पसंद नहीं करता है ना. हर कोई तो डिग्रीज लेना पसंद नहीं करता है. बस ये करते हैं ठीक है, इतना पढ़ लिया, 11th-12th कर ली, नॉट इनफ, क्योंकि आगे जाके तो क्या ही उनके जॉब की चीजें नहीं होती. कुछ भी बिजनेस कर लेंगे, है ना. बिजनेस के लिए तो उनके डिग्री की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि जॉब नहीं करनी है. सो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनका जो स्किल सेट है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, लो लेवल होता है. सो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसी में सिंपल लैंग्वेज में ही बात करते हैं. उनके विजुअल्स वगैरह सारी चीजें वैसे ही सिंपल रहती है. वो हार्डली दे गूगल थिंग्स बिकॉज दे डोंट नो अबाउट इंग्लिश, है ना. दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द लैंग्वेजेस.
है ना। आप उनसे अगर आज आप अर्बन के लोगों से पूछो तो वो आज भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो भी हैं वो सारे जर्मन सीखें या डिफरेंट कोई भी एडिशनल लैंग्वेज सीखें, है ना, क्योंकि उनकी एडिशन स्किल सेट में इंक्लूड हो जाएगा। बट हैव यू गाइस एवर हर्ड कि किसी गांव के लोगों ने उनको बोला है कि आप हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज सीखो, या इंग्लिश भी कोई आर एनीबडी मोर सीरियस टुवर्ड्स इंग्लिश आल्सो? मैम। No, right? So they are very much comfortable in their native languages. और जो बिहार से बिलोंग करता है वो बिहार की लैंग्वेज बोलता है, जो हरियाणा से बिलोंग करता है वो हरियाणवी लैंग्वेज बोलता है. So they are very much comfortable in their own skin, in their own language, in their own cuisine, in their own tradition, in their own values. तो उनको नई चीजों से फर्क पड़ता है, and that is why they are not very much into learning things. So that's the reason why they are as low literacy level. ठीक है। नाउ द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, एज आई हैव सेड राइट नाउ, कि उनकी जो भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स है, वो बहुत ही लिमिटेड रहती हैं। वो उनको कोई लग्जूरियस लाइफ जीने का चीजें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या रिक्वायरमेंट मतलब उनकी कोई भी चॉइस नहीं होती है ना, कि मुझे तो ऐसी चीजें चाहिए, लंबी कार चाहिए, महंगे ब्रांड्स पहनने हैं कपड़ों में. सो दे डोंट डिमांड सच थिंग्स. सो दैट इज व्हाई दे फॉलो देयर ट्रेडिशन वेरी नाइसली, एंड बहुत स्ट्रांगली वो अपने कल्चर को वैल्यू करते हैं, अपने बिलीव्स को वैल्यू करते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके थॉट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं. एंड दे आर वेरी मच इनटू देयर ट्रेडिशन, देयर लाइफस्टाइल. सो दे डोंट एक्चुअली कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर पर्सन. और जब कंपेयर नहीं करेंगे तो मन में वो चीजें भी नहीं आती कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, या मुझे भी ऐसी चीजें चाहिए. ज्यादा डिमांड्स नहीं इंक्रीज होती हैं, है ना. जो लोग हम लोगों ने देखा होगा बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, है ना, दे आर नॉट टूवर्ड्स इनटू वेस्टर्न कल्चर. सो उनको नहीं करना है फॉलो, तो वो नहीं करते हैं. पीपल ओवर देयर स्टिल वेयर साड़ीज और सूट्स और सम धोतीज और कुर्ताज, राइट. सो और वो सारी चीजें उनके बिहेवियर में भी विजिबल होता है. उनका खान पीने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका. पीपल हियर आर मोर ऑफ अ लेट बेड काइंड ऑफ पीपल, है, अर्ली राइजर्स नहीं है. लेकिन गांव में तो सारे लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत ही जल्दी सो भी जाते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाई वी से दैट कि जो विलेजेस में लोग होते हैं, जो रूरल मार्केट रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करना नहीं पसंद करते हैं. ठीक है. एंड वी कैन से और वी कैन सी दोज थिंग्स इनटू देयर बिहेवियर. एंड द लास्ट वन इज प्राइस सेंसिटिविटी. दे आर मोर प्राइस सेंसिटिव. उनको बहुत पता है चीजें कि उनको अफोर्डेबल प्राइजेस ही समझ में आते हैं. अगर उनको लगेगा कि हाँ ये इतने का है तो वो उतने का ही लेके खुश रहेंगे. आप उनको ज्यादा कोट करोगे, आप उनको बेनिफिट्स बताओ, उनको कोई लेना देना नहीं है कि कितने ही बेनिफिट्स हैं, कितने ही उनको एडवांटेजेस हो सकते हैं उनकी लाइफ में, है ना. अगर उनको हाथ से कपड़े धोने हैं, तो वो हाथ से ही कपड़े धोंगे. वो उनके लिए कोई मतलब नहीं है उस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, या वॉशिंग मशीन का कोई मतलब ही नहीं है ना, कि पैसा खर्च होगा तो लोग इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा बिल आएगा. सो दे थिंक टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, है ना. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन आर यू बी डीलिंग विद द पीपल ऑफ विलेजेस, सो यू नीड टू थिंक अकॉर्डिंग their thoughts, their values, their traditions and their requirements basically. और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उनको प्राइस कोड करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको बिलीव करा सकते हो या उनको अपना प्रोस्पेक्ट बना सकते हो. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any doubt in any of the point? बेटा किसी को डाउट है किसी भी पॉइंट में? No, ma'am. Shall we move forward? Yes, ma'am. Now the next topic is scope of rural marketing. Okay. So now we have understood the meaning of rural marketing and the characteristics or the features. Now we will be understanding the scope, where we can use these kind of things and how we can make most out of it, and how we can earn more revenue from it. Okay. So first one is marketing of agriculture products. As I've said you, or I told you that majority of people lies in rural areas,
और जितने भी लोग होते हैं उनमें से भी मेजोरिटी ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सर्वाइवल, है ना, बहुत ज्यादा लोग फार्मर्स होते हैं, तो वो एग्रीकल्चर की चीजों को ही प्रोड्यूस करते हैं और वो सेल करते हैं टू द अर्बन मार्केट्स, है ना। उन्होंने अनाज उगाया, उन्होंने चावल उगाए, उन्होंने वेजिटेबल्स उगाए, उन्होंने फ्रूट उगाए, तो वो सारी की सारी चीजें हार्वेस्ट करके वो रूरल मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन। As you can see, there are some examples written over here: wheat, rice, fruits, vegetables, cotton, milk, dairy products, है ना। मंडीज के थ्रू ये लोग डील करते हैं। इफ यू गाइस हैव सीन की some of the people with the vegetables, the fruits come from their villages and set up their market or the readies into the sectors on some particular day, है ना। फिर हम बोलते हैं कि मंडी लगी हुई है आज, तो हमें वहां जाके सब्जियां लेनी है। तो व्हाट डज इट मीन? कौन होता है वो लोग और वो क्या ही कर रहे हैं वहां पे? बोलो। Mostly farmers selling their vegetables or fruits. यस, ठीक है, जस्ट टू अर्न मनी दे आर सेलिंग देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द citizens of urban area. Now the next one is marketing of industrial product in rural areas. So first हमने ये देखा कि rural से urban में कैसे जाते हैं. Now we'll see urban से rural में कैसे जाते हैं. So we have three types of goods: consumer goods, durable goods and agricultural inputs. So consumer goods कौन से होते हैं बेटा? FMCG. FMCG goods. So basically directly consumption के लिए होते हैं लोगों के, है ना। Yes, ma'am. तो हम उन्हीं को कैटेगराइज करते हैं अपने कंज्यूमर गुड्स में। एंड इट कैन बी सोप्स, है ना, कुछ खाने पीने की चीजें, शैम्पूज, या कंडीशनर्स, और Clothes, cosmetics, या क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, beverages. या बेवरेजेस, ठीक है। तो यही हमारी चीज होती है कंज्यूमर गुड्स के अंदर, कि जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे जिनके साथ डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देके वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं।
Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yeah, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I don't know how I'll let go. Screen visible to everybody? No, ma'am. No, No, ma'am. There's an issue with content sharing. आप में से भी कोई और लेफ्ट हुआ था क्या? No, ma'am. मेरा कैसे लेफ्ट हो गया? Just checking. Hello, Anand sir, are you there? विजिबल है स्क्रीन, अब चेक करना। No, ma'am. No, ma'am. सर ये स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रही है। मैम ऑप्शन तो आ रहा है ना आपके पास? हाँ जी सर, ऑप्शन आ रहा है बट उसमें लिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्रायंगल नेटर इशू इन शेयरिंग कंटेंट। ओके, मैं एक बार करता हूँ। जी